हाँ जी कर दो। Good afternoon, everyone. A very warm welcome to all the respected members and participants joining us today for this webinar. Section 43 BS Timely Payments and Trades Platform, organized by NICAI. It's now my privilege to introduce our eminent speaker for today's webinar, CA Dr. Raj Chawla. So, CA Raj Chawla is a designated partner at RCA and Co LLP, based in New Delhi, with her distinguished professional career spanning over 3 decades. He is renowned expert in accounting, auditing, MSME, and taxation. CA Dr. Raj Chawla is a chartered accountant, company secretary, cost accountant, DISA qualified professional, and a law graduate. He also holds advanced qualifications, including PhD in International Finance, ASA Australia, and CMT USA. He is currently serving as the Vice President of the Chamber of India MSME. He has earlier served as the Chairman of NIRC of ICAI and a Central Council member of ICAI. He has been actively associated with several professional and social organizations, including the Delhi Management Association, Rotary Club, and Krishna San Foundation. Sierra Chawla has been a peer reviewer, academician, and a regular speaker at a various forums on professional and MSME related subjects. We are truly honored to have him with us today to share his deep insight on Section 43B Timely Payment and Trades Platform. With these words, I warmly invite CA Dr. Raj Chawla sir to take over the session and enlighten us with his thoughts. Over to you, sir. Thank you, Satyam. Good afternoon, everyone. First of all, I welcome all of you in this today webinar on Section 43BH and the solution to this 43BH, that is the TRADS platform. So we will discuss, because at the time of this section, when this was inserted in the last year on 1st of February 2024 budget by our Honorable Finance Minister, this new section was inserted, and the objective of this section was to ensure that the payment of MSME for supplying their goods or services must be received by the MSME within a specific time, and that was the standard time is 15 days. But if there is any agreement between the buyer and seller, in that case this payment can be extended up to 45 days, but not beyond 45 days in any condition. But yes, there is a one exception, that if there is a rejection in the goods or services, in that case this time will be calculated from the date when this defect is removed. So we will discuss one by one everything. Let me start my PPT. Just a minute. Just a minute. So friends, first of all, I will discuss this section 43BH, and I hope just sharing नहीं किया ना. I am sharing my PPT. Satyam, please check whether this PPT is visible. Okay. So friends, first of all, as I told you, that this section 43BH was inserted in the Finance Act 2024. Although there was two budget in the year 2024, first was on 1st of February 24 and the another was in the month of August 20, 17th August 24, after the Lok Sabha election. So when this new section 43BH was inserted, at that time there was a objection from the business houses side that this is a harsh
amendment to this payment system, because earlier the payment system was 4 months, 6 months, but now as per this section 43BH, the buyer has to make the payment within 15 days. And if there is any agreement, in that case, this payment can be extended up to 45 days, but not beyond 45 days in any condition. And after the objection from the business side, business houses, because business houses told their sellers that if you want to supply the goods, in that case, please surrender your MSME registration. Otherwise, we will not buy goods or services from you. In that condition, our honorable finance minister gave some statement, even at the platform of our ICI, that they will give some relaxation in this 43BH. And the relaxation was the trade platform. The trade platform is an old one, but the limit for mandatory registration at platform was 500 crore. But after this second budget, this limit from 500 crore to was down to 250 crore. So this is the solution to this section 43BH. So this section 43BH is effectively applicable with effect from 1st April 24, means for the assessment year 24 and 25. And what it says, that any payment to an MSME must be made within 15 days or maximum 45 days, where an agreement exists. Without agreement, you cannot delay the payment from 15 days. कई लोग कहते हैं कि जी हमारी बात हो गई है, ये वो, nothing doing. There must be agreement, and agreement need not to be written agreement. अगर आपने SMS पे acceptance ले लिया है, WhatsApp पे acceptance ले लिया है, email पे acceptance ले लिया है, that is also more than sufficient to be treated as a agreement as prescribed under the MSME Act, and failure to make payment within the period will result in delayed payment. Members, please note down, this is a very technical point, that this delayed payment, because if there is a delayed payment, in that case, the provision for interest will be applicable. And you will be surprised to know that the rate of interest on delayed payment is 3 times the bank repo rate. And not only that, this interest to be calculated on monthly compounded basis. And not only that, this interest paid to MSME on delayed payment is not an allowable expenditure under Income Tax Act. तो बहुत ही खतरनाक ये सेक्शन है 43BH, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है हमने, और एज ए बिजनेसमैन तो देखना ही देखना है, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हमारी ड्यूटी लगाई है इनकम टैक्स एक्ट में भी और कंपनीज एक्ट में भी। इनकम टैक्स एक्ट में आप देखते हैं जो हमारा फॉर्म 3CD है, फॉर्म 3CD का जो क्लोज 22 है, उसके अंदर बीइंग ऑडिटर आपको रिपोर्ट करना है कि जो MSME की डिलेड पेमेंट है उसका प्रोविजन हुआ है, इंटरेस्ट का प्रोविजन हुआ है, और इसका पूरा सेग्रीगेशन है। और उधर कंपनी एक्ट में कंपनीज की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनीज को हर 6 मंथ में रिपोर्ट करना है MSME फॉर्म 1 भर के, जो 30 सितंबर की हाफ ईयरली का विद इन ए मंथ अप टू 31 अक्टूबर, और 31 मार्च की क्लोजिंग का 30 अप्रैल विद इन ए मंथ। कहने का मतलब है 2 टाइम्स कंपनी को भी रिपोर्ट करना है MCA को, और ऑडिटर की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर इस चीज को मेंशन करना है कि MSME की कितनी पेमेंट्स, कितना हमने MSME से माल खरीदा, कितनी उनकी पेमेंट हो गई, कितनी डिले है, और कितना ब्याज का प्रोविजन हुआ है। सो हम इसको 1 बाय 1 सब चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इसमें अगर पेमेंट डिले हो जाती है, और वो पेमेंट अगर डिले हो गई, अगर आपने सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर उसका पेमेंट कर दिया तो वो आपको डिसअलाउड नहीं है। लेकिन अगर 31 मार्च को कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग है और जिसकी पेमेंट आपने अगले फाइनेंशियल ईयर में पे किया है, तो कहने का मतलब है
उस साल में आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी. दैट विल बी अलाउड ओनली इन द ईयर इन विच इट इज मेड, इट इज पेड. तो कहने का मतलब है एमएसएमई में इफ देयर इज अ डिले इन पेमेंट, if it is a delayed payment and that is outstanding in the balance sheet as on 31st of March, and that is a delayed payment, in that case that will not be allowed to claim the expenditure of goods or services in that particular year. That will be allowed only in the year in which it is paid. So this is all about section 43BH. अब हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि इसकी टाइम लिमिट क्या है. तो पहले हम सिनेरियो और दूसरा मैक्सिमम टाइम अलाउड फॉर पेमेंट. नो एग्रीमेंट रिटर्न यानी कि स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज 15 डेज फ्रॉम एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब यहां बात आती है कि डीम्ड एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं. डीम्ड एक्सेप्टेंस मींस व्हेन गुड सर्विसेज आर नॉट रिजेक्टेड विद इन 15 डेज ऑफ डिलीवरी. अगर आपने किसी के माल में कोई कमी निकालनी है, कोई रिजेक्शन करना है, कोई ऑब्जेक्शन करना है, देन यू हैव टू मेक इट विद इन 15 डेज. फिर जब आपका ऑब्जेक्शन रिजेक्शन रिमूव हो जाएगा, जिस दिन रिमूव होगा उस दिन से आपके टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी. लेकिन आप ये नहीं कि भाई ऑब्जेक्शन रिजेक्शन जो है 1 महीने बाद या उसके बाद करें. ठीक है. और मेंबर्स मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी की कोई भी क्वेरी हो आप हाथ के हाथ भी पूछ सकते हैं और अपनी क्वेरी को Q&A में भी टाइप कर सकते हैं. हम बाद में टेकअप कर लेंगे, लेकिन हमारे पास इस जूम कनेक्शन में फैसिलिटी है कि हम 1 to 1 भी इसकी बात कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला सिनेरियो है नो रिटन एग्रीमेंट. इन दिस केस द बायर हैज टू. सर एक क्वेरी थी जो आपने बताया था ना, कंपनी को कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा. सर इसको बोलते हैं एमएसएमई फॉर्म 1. जितनी भी कंपनियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं एमसीए के पास, उनको हर 6 महीने एवरी 6 मंथ. और पहले तो जो सिस्टम था वो ये था कि जो आपने एमएसएमई से माल खरीदा है या सर्विसेज ली हैं और कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट डिलेड है उसकी रिपोर्टिंग थी. परंतु लास्ट ईयर से अब इन्होंने सारा का सारा ही उसके अंदर जो है रिपोर्टिंग को बोल दिया कि एमएसएमई से कोई भी आपने माल खरीदा है, चाहे आपने उसकी पेमेंट टाइम से भी कर दी, तो भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा. और फॉर्म हाफ ईयरली है. पहला फॉर्म 30 सितंबर को जाएगा विद इन ए मंथ, यानी कि 1 महीना हुआ 31 अक्टूबर तक. और दूसरा फॉर्म जाएगा 31 मार्च क्लोजिंग का विद इन ए मंथ, यानी कि 30 अप्रैल तक. और इसकी कोई फॉर्म को जमा करने की फीस भी नहीं है एमसीए पे, परंतु ये फॉर्म जमा कराना है. और यहीं पे मैं आपकी बात को एक और वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं कि आपका बीइंग ऑडिटर, जब भी आप ऑडिट के लिए जाएं और कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और आपको अपने टैक्स ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको भी रिपोर्ट बनानी है, तो आप कंपनी से कहिए कि मुझे पहले फॉर्म 1 की कॉपी दीजिए. ताकि जैसे आप जीएसटी की रिटर्न की कॉपी मांग लेते हैं, ऐसे उनसे कहिए मुझे फॉर्म 1 की कॉपी दीजिए. उससे क्या होगा कि आपके पास एक इनपुट रिसीव हो जाएगा. ठीक है सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. और भी किसी की क्वेरी हो तो हाथ के हाथ भी ले सकते हैं, नो इश्यूज देयर. तो मैंने आपको बताया पहले कि नो रिटन एग्रीमेंट, अगर कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है उस केस में स्टैंडर्ड टाइम इज 15 डेज. अगर कोई रिजेक्शन ऑब्जेक्शन नहीं है, अगर कोई है तो फिर वो 15 दिन के अंदर होना चाहिए. सेकंड है रिटन एग्रीमेंट एग्जिस्ट. अगर आपका कोई एग्रीमेंट है तब कैसे है, पेमेंट मस्ट बी मेड विद इन ए पीरियड मेंशन्ड और मैक्सिमम 45 डेज. ये कोई जरूरी नहीं कि 45 डेज ही है, नो. आपका 15 की जगह 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी हो सकता है, 30 डेज भी हो सकता है. इट इज मैक्सिमम 45 डेज बट नॉट बियॉन्ड 45 डेज इन एनी कंडीशन. आपका कितना भी कोई एग्रीमेंट साइन हो, आपने सामने वाले से लिखवा लिया है, तो भी किसी केस में सर आप 45 दिन से ज्यादा किसी की पेमेंट एमएसएमई से की रोक नहीं सकते. यहाँ पे मैं आपको एक चीज और अच्छी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे एमएसएमई का मतलब माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम नहीं है. यहाँ पे जो सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी है डिसअलाउंस के लिए, वो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए है. मीडियम को इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा. अभी मैं डेफिनेशन आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा. तो कहने का मतलब ये है, एग्रीमेंट नहीं है तो आपका 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है. एग्रीमेंट है तो मैक्सिमम 45 दिन में करना है. अगर
सामने वाले ने, बायर ने कोई रिजेक्शन डाल दिया है, तब जिस दिन रिजेक्शन आप रिमूव कर देंगे उस दिन से वो टाइम की कैलकुलेशन की जाएगी। चलिए नेक्स्ट सर, मैं अब आपको इसको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूं। ये पहला हमारा केस स्टडी है जो कहलाएगा पेड विद इन टाइम। कब कहलाएगा? मैंने 5 लाख रुपए का माल 1 फरवरी 2025 को खरीदा है और मेरा एग्रीमेंट है कि जी मैंने 45 दिन में पेमेंट करनी है, और मैंने पेमेंट कर दी 10 मार्च को, यानी कि मैं 15 मार्च तक कर सकता था 45 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन मैंने 10 मार्च को ही कर दी। अब चूंकि विद इन द टाइम, एग्रीड टाइम मैंने पेमेंट कर दिया है, तो उस केस के अंदर मेरे ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ना ही मुझे पैनल इंटरेस्ट देना है और ना ही मेरा जो है एक्सपेंडिचर जो है डिसअलाउंस होगा। तो ये मेरा पेड विद इन टाइम कहलाएगा। नाउ सिनेरियो नंबर 2। सिनेरियो नंबर 2 क्या कहता है कि जो मैंने पेमेंट किया है वो 20 मार्च को किया, यानी कि 45 दिन से ज्यादा हो गए। अब जब 45 दिन से ज्यादा हो गए, पर चूंकि ये विद इन द सेम फाइनेंशियल ईयर पेमेंट हो गई, तो यहाँ पे मेरी जो ये एक्सपेंडिचर है इट विल बी ए अलाउएबल एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग नहीं है बैलेंस शीट के अंदर, बट इंटरेस्ट प्रोविजन मुझे करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट कितना है? 3 times द बैंक रिपो रेट ऑन मंथली कंपाउंडेड बेसिस, एंड this interest paid to MSME on delayed payment is not a allowable expenditure under income tax act। ठीक है सर, तो ये हुआ सेकंड केस हमारा। थर्ड केस क्या कहता है? पेमेंट मेड ऑन 5 अप्रैल 25, तो ये डिसअलाउंस भी हो जाएगा और इंटरेस्ट का भी होगा, कारण कि 31 मार्च को वो आउटस्टैंडिंग है और 31 मार्च को वो डिले हो चुकी पेमेंट की। अब चूंकि पेमेंट की डिले हो चुकी है तो इसलिए वो डिसअलाउ भी हो जाएगा, प्लस हमें उसके ऊपर जो है इंटरेस्ट का भी प्रोविजन करना पड़ेगा, जैसा मैंने आपको बताया। चलिए सर, अब हम बात करेंगे कि हम एमएसएमई कहेंगे किसको, कौन लोग इसमें कवर होंगे। और यहाँ पे आप सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि चूंकि आप ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 24-25 का कर रहे हैं, तो आप ये भी देखिएगा कि जो एमएसएमई की कैटेगरी है, तो जो कैटेगरी है वो उसी साल की आपको टेकअप करनी है, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के थ्रू जो इसकी लिमिट है, जिसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि ये माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है, उसकी लिमिट को बढ़ा दिया है। 2 पैरामीटर हैं एमएसएमई के, पहला है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और दूसरा होता है टर्नओवर। 1 अप्रैल 2025 से इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को 2.5 टाइम कर दिया गया है और टर्नओवर को डबल कर दिया गया है। वो कब से एप्लीकेबल है? 1 अप्रैल 2025 से। कहने का मतलब है जब मैं 25-26 फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करूंगा नेक्स्ट ईयर, तब मुझे लिमिट देखनी है। तो आज की डेट में अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आपको लास्ट ईयर की लिमिट देखनी है। अब हम दोनों लिमिट मैंने लिखी हुई है, मैं आपको 1 by 1 डिस्कस करता हूं। माइक्रो में जो 31 मार्च 25 तक है कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ है और टर्नओवर 5 करोड़ है, ये दोनों कंडीशन पूरी होना जरूरी है। बोथ द कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। एक चीज भी अगर ऊपर निकल गई तो नेक्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज अप टू 1 करोड़ and turnover is up to 5 crore. In that case, it will be called micro enterprises up to 31st March of 25. After 31st March, यानी कि with effect from 1st April 25, this limit has been increased to 2.5 time. Investment plant and machinery 1 करोड़ की जगह 2.5 करोड़ हो गया और टर्नओवर 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गया। ऐसे ही स्मॉल में पहले 10 करोड़ और 50 करोड़ था, जो 25 करोड़ और 100 करोड़ रुपया हो गया। मीडियम में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ था, ये अब 125 करोड़ और 500 करोड़ हो गया। एंड मेंबर्स, आई वांट टू अपडेट ऑल ऑफ यू दैट आई विल शेयर दिस पीपीटी विद टू ऑल ऑफ यू। आई विल सेंड थ्रू ईमेल एंड योर व्हाट्सएप नंबर, सो यू नीड नॉट टू मेक द कॉपी ऑफ दिस। आपको हम भेज देंगे इसकी रिकॉर्डिंग के साथ में। तो अब कहने का मतलब है इस एमएसएमई में जो सेक्शन 43 BH कहती है, वो ये कहती है कि इसके अंदर जो है
माइक्रो एंड स्मॉल आर कवर्ड, मीडियम आर नॉट कवर्ड। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको मैं बात बताता हूं कि दो चीजें हैं, एक है डिसअलाउंस ऑफ पेमेंट एंड द अनदर वन इज द इंटरेस्ट। सेक्शन 43BH के हिसाब से जो डिसअलाउंस है वो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल का है, लेकिन इंटरेस्ट में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। कहने का मतलब है इंटरेस्ट तो हमें तीनों को ही देना पड़ेगा, माइक्रो को भी, स्मॉल को भी और मीडियम को भी। चलिए पढ़ते हैं इसका पहला नंबर पॉइंट। सप्लायर मस्ट बी ए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज अंडर MSME एक्ट टू अवेल दिस सेक्शन 43BH, दैट इज डिसअलाउंस। सेकंड, medium enterprises are not covered under this section 43BH. Third, trader are excluded as per MSME classification. 2021 में भारत सरकार ने ट्रेडर को भी अलाउ किया था कि आप भी MSME के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं, बट ओनली फॉर वन पर्पस, दैट दे कैन अवेल द क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम बैंक और NBFC। सिर्फ उसके पर्पज से ट्रेडर को अलाउ किया गया था कि they can register their self at MSME portal, that is उद्यम रजिस्ट्रेशन। उनको उस क्रेडिट फैसिलिटी के अलावा कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और मैं आपको क्रेडिट फैसिलिटी भी बता देता हूं। इफ यू आर ए रजिस्टर्ड MSME, चाहे आप ट्रेडर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, वी चार्टर्ड अकाउंटेंट आर आल्सो MSME बिकॉज वी आर सर्विस प्रोवाइडर। अगर मैं MSME में रजिस्टर्ड हूं तो उस केस में सरकार मुझे 10 करोड़ तक लोन विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, और ये आप लोगों के लिए एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी भी है। ये 1 अप्रैल से इसकी लिमिट 10 करोड़ हो गई, पहले 5 करोड़ थी, 31 मार्च 23 तक ये 2 करोड़ थी। कहने का मतलब है इफ यू आर ए MSME, इन दैट केस बैंक एंड NBFCs आर गिविंग लोन विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी अप टू 10 करोड़। और एक चीज इन्होंने और जोड़ी है इसी बजट के अंदर ही, इफ यू आर ए MSME एंड यू आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स और सर्विसेज, इन दैट केस यू कैन अवेल अप टू 20 करोड़ रुपीज लोन फ्रॉम बैंक और NBFC। ये पहली बार हुआ है एक्सपोर्टर के लिए। 31 मार्च 2025 तक ये 5 करोड़ की लिमिट थी, 31 मार्च 2023 तक ये 2 करोड़ रुपए की लिमिट थी। तो सरकार दोनों तरह से MSME सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, चाहे उसको फंड चाहिए बैंक से, NBFC से, विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, इसको बोलते हैं CGT MSE स्कीम, क्रेडिट गारंटी स्कीम। यानी कि भारत सरकार अपनी गारंटी पे MSME को लोन दिलाती है। और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि अगर किसी MSME ने कोई माल बेचा या सेवाएं दी हैं, उसको रीजनेबल टाइम में पेमेंट मिल जाए, ताकि उसकी ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर घूमे। उसकी टर्नओवर ज्यादा घूमेगी तो क्या होगा कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, हमारी जो GDP है वो बढ़ेगी, और मेरे देश की जब GDP बढ़ेगी तो हम वर्ल्ड की जो आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो जल्दी ही हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। क्योंकि MSMEs को टाइम से पेमेंट नहीं मिलती, उनकी टर्नओवर ज्यादा नहीं घूम पाती, इसलिए सरकार ने 43BH के थ्रू उनको एक सपोर्ट सिस्टम दिया है। चलिए 4th ये क्या कहती है कि प्लीज एंश्योर before audit that vendors classification under MSME category is verified as per the applicable investment and turnover limit prescribed under MSME Act। ये मैंने आपको पहले एक सचेत किया है कि आप जब भी ऑडिट करें तो ये देख लें कि उस साल में लिमिट्स क्या हैं, ये किस कैटेगरी में फाइल करता है, और आप इसका MSME रजिस्ट्रेशन नंबर लेके इनकी वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी MSME ने मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कराया, रजिस्ट्रेशन कराने पे उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या टर्नओवर है वो कुछ और हो सकती है, लेकिन हर साल उसकी टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी तो चेंज होती रहेगी, वो बढ़ेगी या घटेगी जो भी होगा। अब चूंकि MSME का रजिस्ट्रेशन कराते समय हर बिजनेसमैन को अपना पैन और GST नंबर देना होता है, तो MSME मिनिस्ट्री पूरा डाटा फैच कर लेती है इनकम टैक्स की वेबसाइट से और GST की वेबसाइट से, वो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है, वहां पे ऑटोमेटिकली उसकी कैटेगरी चेंज होती रहती है। तो बीइंग ए ऑडिटर आप प्लीज इंश्योर कर लीजिएगा कि वो किस कैटेगरी में फॉल करता है। जो सर्टिफिकेट है वो जरूरी नहीं कि वो उसी कैटेगरी का हो, क्योंकि सर्टिफिकेट के बाद मान लीजिए उनकी टर्नओवर बढ़ गई, उनकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई, तो उनकी कैटेगरी भी चेंज हो जाएगी। तो प्लीज इंश्योर कि वो आप चेक करेंगे।
अब आते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट मैंने आपको बताया इफ देयर इज ए डिलेड पेमेंट, और डिलेड पेमेंट कब होती है, जब आपने उसको एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर बायर ने सेलर को पेमेंट नहीं की। स्पेसिफिक टाइम मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड टाइम इज 15 days, बट इफ देयर इज एनी एग्रीमेंट इन दैट केस दैट कैन बी मैक्सिमम 45 days, बट नॉट बियॉन्ड 45 days इन एनी कंडीशन। ठीक है, तो 45 दिन के बाद अगर वो डिले हो गई तो वो डिलेड पेमेंट कहलाएगी, और डिलेड पेमेंट है तो हमें ब्याज का प्रोविजन करना है, और ब्याज कितना है, बायर इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ 3 times द बैंक रिपो रेट, और आज की डेट में हम जानते हैं बैंक रिपो रेट क्या है, 5.5%, मींस देयर बाई we have to make the provision for interest at a rate of 16.5%, and not only that, this interest will be calculated on monthly compounded basis। चक्रवर्ती ब्याज लगाना पड़ेगा, मंथली कंपाउंड करना पड़ेगा हमें ब्याज को, तो 16.5 का भी 18% भी हो सकता है। And this interest paid on delayed payment to MSME is not a allowable deduction under Income Tax Act. This will be treated as a penalty paid to the Government of India। आप बिजनेस के अंदर कोई भी ब्याज पे करते हैं, ये हमारा बिजनेस एक्सपेंडिचर है, और मैंने ब्याज दिया तो बिजनेस की वजह से ही नहीं हुआ, लेकिन इस सेक्शन को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने कहा कि अगर आपने एमएसएमई को कोई भी डिले पेमेंट का इंटरेस्ट पे किया तो दैट विल नॉट बी, यू कैन नॉट क्लेम दैट इंटरेस्ट एज ए डिडक्शन इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस विल बी डिसअलाउड, इट विल बी ट्रीटेड एज ए पेनल्टी पेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक दैट। जैसे आप सरकार को कोई भी पेनल्टी देते हैं उसी तरह से इसका ट्रीटमेंट होगा। चलिए नेक्स्ट है, MSME delayed payment is applicable to micro and small enterprises but not to the medium enterprises, but for the purpose of interest provision it is applicable to all micro, small and medium। ये बहुत टेक्निकल चीज है कि डिसअलाउंस तो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल का होगा, लेकिन ब्याज का प्रोविजन इन तीनों के लिए होगा। MSME delayed payment and provision for interest is not applicable to traders registered under MSME Act। मैंने पहले ही बताया कि ट्रेडर को चूंकि इसका बेनिफिट नहीं मिलता, तो ट्रेडर को MSME की ना तो 43BS सेक्शन का डिसअलाउंस का बेनिफिट मिलेगा, और ना ही वो दे आर नॉट एलिजिबल टू क्लेम दिस इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 16 ऑफ द MSME Act। कोई किसी की क्वेरी हो तो प्लीज हाथ के हाथ आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। सर चैट बॉक्स में क्वेरी डालिए सर। अच्छा, मैं 1 मिनट देख लेता हूँ, 1 सेकेंड होल्ड कीजिए, मेरे को पीपीटी को करना पड़ेगा। हाँ जी, रोहित कुमार जी की क्वेरी है, इफ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज नॉट मेंटेन वेंडर्स स्टेटस वेदर दे रजिस्टर्ड और नॉट, हाउ टैकल दिस सिचुएशन। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर आपका, और मैंने इसके लिए ऑलरेडी सॉल्यूशन बनाया हुआ है, मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, बाद में भी बताऊंगा। सर बीइंग ए ऑडिटर, आपकी दोनों एक्ट के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी और कंपनीज एक्ट के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको इनकम टैक्स एक्ट में जो आप टैक्स ऑडिट करेंगे और उसके टैक्स ऑडिट का क्लोज 22 पे जाके आपको रिपोर्ट करना है। तो आपको करना क्या है सर, जब भी हम ऑडिट के लिए जाएं सबसे पहले हम अपने असेसी से बैलेंस शीट की कॉपी मांगे। ठीक है सर, बैलेंस शीट की कॉपी लेने के बाद अगर हमें पता है कि बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है, तो हम उनसे एक MRL लें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर में पहले उनको लिखवाइए कि सर कौन कौन आपके जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट हैं इसमें कौन कौन है जो MSME को बिलोंग करता है, पहले उनको क्लोज कीजिए। थर्ड, अगर आप किसी कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया को MCA पे हाफ ईयरली रिटर्न भरनी होती है कंपनी को, MCA पे MSME फॉर्म 1 भरना होता है, तो आप उसकी कॉपी मांगिए। इसके अलावा सर आपने क्या करना है, अपनी पार्टी को कहना है कि सर जितनी भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट आपकी खड़ी हैं आप उन सबको एक मेल कीजिए और CC में मुझे रखिए,
और उनको मेल पे क्या लिखना है आपने कि डियर सर, this much of your amount is outstanding in my books of account. Kindly confirm whether you are registered under MSME Act. If yes, kindly provide me the copy of your registration certificate. और एक लाइन और जरूर जोड़िएगा उसमें कि that if your reply is not received by us within 10 days, 5 days, 7 days, whatever is suitable to you, in that case it will be assumed that you are not a MSME. भाई साहब मैं कब तक इंतजार करूंगा? सामने वाले ने 6 महीने में जवाब दिया, आपको ऑडिटर होने के नाते तो रिपोर्ट करना है, आप कैसे करेंगे? ठीक है सर, तो आपने ये करवाना है। और एक लास्ट सावधानी सर आपने और बरतनी है बीइंग ऑडिटर, जो भी आपकी ऑडिट टीम ऑडिट के लिए जाएगी, ऑडिट के लिए जो टीम जा रही है उनको आप कहिए कि ऑडिट में वो ये चेक करें कि किसी बिल या वाउचर के ऊपर पार्टी का MSME रजिस्ट्रेशन नंबर तो नहीं लिखा हुआ। जैसे आजकल हम तो अपने बिल के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं, मैं भी MSME रजिस्टर्ड हूँ और मैंने लिखा हुआ है बिल पे रजिस्ट्रेशन नंबर, और मेरा असेसी ने जो अपना MRL दिया है उन्होंने कहा जी मेरा कोई MSME का पार्टी है ही नहीं, और वहां पे बिल पे लिखा हुआ था हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? ऑडिटर। तो प्लीज मेक एंश्योर, प्लीज गाइड योर ऑडिट टीम कि वो सारे बिल पर्चों पे देखें कि भाई साहब बिल के ऊपर MSME नंबर तो नहीं है, अगर है तो आप उस MRL को चेंज कराइए। उन्हें कहिए सर क्या कर रहे हैं आप, ये पार्टी तो MSME रजिस्टर्ड है, आप कह रहे हैं कि जी इनका तो मतलब जो है मेरे पास तो कोई MSME रजिस्टर्ड है ही नहीं। तो हमें भी कुछ थोड़ा सा एफर्ट करना है सर। तो रोहित जी, आई होप दैट यू आर सेटिस्फाइड नाउ। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है हमारे कार्तिक मेनन जी की। सर, ट्रू इशू इन केस ऑफ ट्रेडर ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स वेयर द पेमेंट आर। मैंने सर आपको सर एक्सप्लेन किया है कि traders are not allowed to take the benefit of section 43BH as well as interest provision. Traders are allowed to register under MSME portal, but only for the purpose of taking the credit that is without collateral security loan from bank or NBFC. इसलिए ट्रेडर को सर कार्तिक जी दिस इज नॉट एप्लीकेबल। कार्तिक जी कुछ कहना चाहते हैं आप? चलिए, कैन ही सर आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, बैकग्राउंड में। आप मेरा मोबाइल नंबर सुनो मेरा, आप कार्तिक जी यू कैन टेक माय मोबाइल नंबर, आई कैन टाइप हियर। नो सर, ये कोई और बोल रहे थे। अच्छा बस ठीक है सर, तो मतलब चलिए। हमारे अगर इन केस ऑफ ट्रेडर है तो दिस 45 पीरियड क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल। भैया जी मैं तो ट्रेडर को बार बार, इसीलिए मैं कई चीजें रिपीट कर रहा हूँ, किसी लोगों को लगता भी होगा कि बार बार कह रहे हैं, वो इसीलिए कह रहा हूँ सर मैं कि ट्रेडर को MSME में 2021 में कोरोना टाइम पे अलाउ किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, बट सिर्फ बैंक का लोन लेने के लिए, क्रेडिट फैसिलिटी के लिए, जो सरकार MSME को बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के लोन देती है। इसके अलावा ट्रेडर को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा सर। 43BH is only applicable to MSME registered people except trader. ओके जी, ओके सर, आगे बढ़े। Sir, I have a query. हाँ सर, प्लीज टेल मी। Sir, in MSME Form 1, what Okay. amount has to be mentioned? Is it after deduction of TDS or before deduction of TDS? नहीं, MSME से जितना भी आपने माल खरीदा है वो तो जो ग्रोस अमाउंट है वही दिखानी है सर। मान लीजिए मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आई हैव रेज्ड ए बिल ऑफ 10,000 rupees to you and you have deducted 1,000 rupees as deduction as a TDS. So you need not to show 9,000. You have to show that I have taken the services of professional services from Mr. Raj Chawla of 10,000 rupees and this is outstanding payment. So gross amount we have to show, sir. So no kind of indirect taxation amount needs to be adjusted. It's just the taxable value of a particular service. ग्रोस अमाउंट है, क्योंकि जो GST की डिले पेमेंट है वो GST एक्ट में भी वो विद इन 6 मंथ अगर आप पे नहीं करते हैं वहां पे भी वो आपको मालूम है कि डिसअलाउंस हो जाता है, तो सेम वे सर यहाँ पे नहीं होगा। Thank you, sir.
ठीक है, थैंक Sir, I have one doubt. यू। या प्लीज टेल मी। If I'm myself an MSME, then Okay. I'm making payment to other MSMEs. सर तो आपके होने ना होने से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इफ यू आर बाइंग, आप अपने आप को भूल जाइए। इफ यू आर बाइंग एनी गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम एनी MSME, आपके Okay. रजिस्ट्रेशन की कोई वैल्यू नहीं है सर। ठीक है। अगर आप किसी MSME से कोई माल खरीद रहे हैं या हम्म। सर्विसेज ले रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू मेक द पेमेंट विद इन 15 days if there is no agreement. But if there is any agreement, in that case that can be extended up to 45 days, but not beyond 45 days in any condition. ठीक है। हाँ, ओके। तो आप अपना भूल जाइए सर, हमारे वाले से कोई मतलब नहीं है। जो सप्लायर है, जिसने माल बेचा, जिसने सर्विसेज दी, ठीक है ना। ठीक है। चलिए सर, तो मैं अब आपको ऑडिट के लिए बताता हूँ सर। ऑडिट में हमें बीइंग ए चार्टर्ड अकाउंटेंट सर, हमें आज की डेट में अपनी स्किन भी सेव करनी है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ जिससे कि आप अपने आप को सेफ गार्ड कर सकते हैं। पहला, कि जो हमारा ये क्लोज 22 इन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट है, वहां पे आपको सारी डिटेल डालनी है कि कितना MSME से आपने माल खरीदा है, कितनी पेमेंट हो गई, कितनी आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग में कितनी 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है। क्योंकि डिसअलाउंस तभी होगा अगर वो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है आपकी बुक्स में और डिलेड है। दोनों चीजें होनी चाहिए, डिलेड भी है और आउटस्टैंडिंग भी है। अच्छा, इसमें यहाँ पे एक डिफरेंट सिचुएशन आ सकती है। मान लीजिए किसी पार्टी ने 30 मार्च को माल खरीदा और पेमेंट की 10 अप्रैल को, तो क्या ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है? क्योंकि 31 मार्च को तो आउटस्टैंडिंग है, लेकिन 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग है लेकिन डिलेड नहीं है, और पेमेंट विद इन स्पेसिफिक टाइम हो गई, तो दिस विल बी अलाउएबल एक्सपेंडिचर इन दैट ईयर एंड नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। ठीक है सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ ऑडिटर शुड सप्लायर्स MSME स्टेटस, यानी कि आपकी ड्यूटी बनती है कि आप MSME का जो भी कोई कहते हैं कि मैं रजिस्टर्ड हूं, उनका उद्यम सर्टिफिकेट की कॉपी लें। जो मेल भिजवाई थी मैंने, वहां पे भी आपको मेंशन किया था कि जब मेल भेजें तो तब भी उसको लिखें कि काइंडली प्रोवाइड अस योर कॉपी ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उद्यम रजिस्ट्रेशन से फिर हम उसके स्टेटस को भी निकाल सकते हैं कि आज की डेट में वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। वहां पे आपको ये भी आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है, ट्रेडर है, प्लस उसकी जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर के बेस पे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि माइक्रो है, स्मॉल है या मीडियम है। ठीक है सर। दूसरा मैंने आपको बताया, यू शुड टेक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर फ्रॉम द असेसी मेंशनिंग द डिटेल ऑफ MSME क्रेडिटर। जैसे याद है, हम पहले भी अपने सन्डी डेटर क्रेडिटर के लिए क्या लिखा करते थे अपने उसमें, कि सन्डी डेटर एंड क्रेडिटर आर सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन, या स्टॉक में हम क्या करते थे, सर्टिफिकेट ले लेते थे मैनेजमेंट से। सेम आपको MRL तो जरूर लेना है, पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी हमने अपने ऊपर नहीं लेनी, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के ऊपर डालनी है, बिकॉज इट इज देयर ड्यूटी टू मेक द KYC ऑफ द क्रेडिटर्स। तो उनसे ले लीजिए। वेरीफाई फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स रिगार्डिंग देयर स्टेटस वेदर दे आर रजिस्टर्ड एज दिस। ये आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भी पूछ सकते हैं और ईमेल पे भी कर सकते हैं। वेरीफाई ड्यूरिंग द ऑडिट वेदर MSME डिटेल इंक्लूडिंग उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आर मेंशन ऑन देयर सप्लायर्स बिल और वाउचर। ये मैंने आपको बताया कि अपनी ऑडिट टीम को जरूर कहें कि भाई अपना चेक कर लेना सारे बिलों को, कहीं ऐसा ना हो कि बिल के ऊपर तो लिखा हुआ था MSME नंबर, मेरी पार्टी मुझे कह रही है कि MSME रजिस्टर्ड नहीं है। हु विल बी रेस्पॉन्सिबल? इट इज माई ड्यूटी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, प्लीज टेक केयर। और एक इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम अर्लियर ईयर, किसी पार्टी का इस साल का कुछ आउटस्टैंडिंग है जो डिलेड है, लेकिन पुराना भी चला आ रहा है, तो पुराने से कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ इस पर्टिकुलर ईयर का, जिस साल का हम चेक कर रहे हैं, उसकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट देखनी है। और इसके अंदर एक चीज और मैं आपको मेंशन करता हूं, मान लीजिए मैंने किसी से 100 रुपए का माल खरीदा और 50 रुपए पेमेंट कर दी, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च को 50 रुपीज है, इन दैट केस ओनली 50 रुपीज विल बी डिसअलाउड, ना कि पूरा 100 का 100 रुपया। जितना रुपया मैंने पेमेंट कर दिया उसका तो मतलब ही नहीं है। तो ये नहीं सोचना कि भाई जो है मुझे पूरा बिल डिसअलाउ करना, नो, ओनली द आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेंशन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड विच इज ए डिलेड पेमेंट। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर इस सॉल्यूशन के ऊपर
ये मैं समझता हूँ ये किसी को नहीं मालूम था कि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने, क्योंकि इलेक्शन था लास्ट ईयर 2024 में, तो जो पहला बजट आया था 1 फरवरी को, और उसके अंदर ये सेक्शन इंसर्ट की, और सेक्शन इंसर्ट होने के बाद बाजार में बहुत हाहाकार मचा, बहुत लोगों ने अपने एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस भी कैंसिल कराए, और बहुत जो बिजनेस एसोसिएशंस थे उन्होंने सरकार को अप्रोच किया। तो सरकार ने कहा वी विल गिव सम सॉल्यूशन, वी विल गिव सम रिलैक्सेशन। तो व्हाट वाज दैट रिलैक्सेशन? रिलैक्सेशन इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म की लिमिट को 500 करोड़ से 250 करोड़ करना। अब मैं आपको ट्रेड प्लेटफॉर्म बताता हूं सर, और जो आप अपनी पार्टियों को भी बता के इस सॉल्यूशन का फायदा उठा सकते हैं। फिर आपकी पार्टी को ये झगड़ने की जरूरत नहीं है कि भाई हम एमएसएमई वाले से माल खरीदेंगे ही नहीं, क्योंकि अगर आप ट्रेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड हैं तो जितनी भी डिसअलाउंस और इंटरेस्ट की डिसअलाउंस की चीजें हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी। चलिए इसको आराम से पढ़ते हैं वन बाय वन। ट्रेड्स इज ए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म regulated by the Reserve Bank of India that facilitates financing and discounting of trade receivable, that is invoice and bill, of micro, small and medium enterprises through multiple financiers, bank and NBFC। हम देखते थे आज से 30 साल 40 साल पहले भी, हम जब एज ए आर्टिकल भी अपने बॉस के साथ जाते थे आते थे तो देखते थे बैंकों में जाके बिल डिस्काउंटिंग होती थी, बट दैट टेक्स टाइम। 15-20 दिन का टाइम लग जाता था, बड़ी उसके अंदर मुश्किल आती थी कराने में। तो सरकार ने उस चीज के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना दिया जो रिजर्व बैंक इसको गवर्न करता है। इसका प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। As per the second union budget in July 2024, the government has reduced the turnover threshold for mandatory onboarding on the TRADS platform। TRAD की फुल फॉर्म होती है ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म, फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़। पहले सर क्या था कि अगर आपकी टर्नओवर 500 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा है तो आपको ट्रेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड होना कंपलसरी है, मैंडेटरी था। तो सरकार ने जो कहा था कि हम रिलैक्सेशन देंगे, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने हमारे आईसीआई के प्लेटफॉर्म पे जाके कहा था वी विल गिव सम रिलैक्सेशन अगेंस्ट दिस सेक्शन 43BH, एंड दिस इज द रिलैक्सेशन दैट दे हैव रिड्यूस्ड दिस मैंडेटरी लिमिट फ्रॉम 500 करोड़ टू 250 करोड़। यानी कि अब 250 करोड़ रुपया या उससे ज्यादा की टर्नओवर वाली हर कंपनी को अपने आप को ट्रेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, मस्ट है। एंड इन एडिशन वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड फॉर कंपनीज having a turnover below 250 crore, enabling wider participation and promoting timely payment to MSME। आपकी टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो भी आप करा सकते हैं, ये वॉलंटरी कहलाएगा, लेकिन 250 से ऊपर तो मैंडेटरी कराना ही पड़ेगा। अब इसके मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा क्या है सर। अब ये इसको हम लिंक करते हैं, लिंक विद ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या होता है। ट्रेड्स जैसे मैंने आपको बताया ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम, जैसे हम बिल डिस्काउंटिंग पहले बोलते थे, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे बिल की डिस्काउंटिंग होती है, और ये प्लेटफॉर्म जो है रेगुलेटेड बाय आरबीआई है। इसका पर्पस क्या है? टू हेल्प एमएसएमई गेट अर्ली पेमेंट बाय डिस्काउंटिंग देयर इनवॉइस थ्रू बैंक और एनबीएफसी ऑन ए डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये 4 तरह के प्लेटफॉर्म वहां पे अवेलेबल हैं, लाइक RXIL, M1 एक्सचेंज, इनवॉइस स्मार्ट हम सब लोग जानते हैं क्योंकि ये एक्सिस बैंक इसको गवर्न करता है, एंड C2FO इंडिया। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपने किसी को माल बेचा, चाहे वो 45 दिन की उधारी पे बेचा, माल बेचने के बाद अगर आपको इमीडिएट पैसा चाहिए तो उस बिल को आप ट्रेड प्लेटफॉर्म पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद जो आपका बायर है वो उसे एक्सेप्ट करेगा, यस कि मैंने इनसे माल खरीदा है और मैंने इसकी पेमेंट 45 दिन में देनी है। उसके बाद वहां पे मल्टीपल बैंकर होते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उस मल्टीपल बैंकर में उसकी बिडिंग होगी आपके बिल की, और बिडिंग में आपको बढ़िया से बढ़िया जो है इंटरेस्ट का रेट मिलेगा, और विद इन 24 आवर्स की इनकी गारंटी है कि 24 घंटे में आपके बिल की डिस्काउंटिंग हो जाएगी। यानी कि 24 घंटे में सेलर को पेमेंट मिल गया। अब बात यहां आती है कि उसका इंटरेस्ट कौन भुगतेगा। अगर ये मेरा एग्रीड टाइम है, चाहे वो 15 दिन है या 45 दिन है, उससे पहले मैंने अगर बिल की डिस्काउंटिंग कराई तो उतने दिन का ब्याज सेलर को देना है। अगर उससे
बाद का है तो तब उस केस में बायर देगा। मैं बताता हूं कैसे। इसमें 45 दिन तक की जो बिल डिस्काउंटिंग है वो सेलर के लिए है और बायर को भी 6 मंथ का टाइम मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक बायर को 7.5 महीने का उधार मिलता है। अब बात यहां पे एडजस्टमेंट की आती है। मान लीजिए कोई बायर किसी से 100 रुपए किलो माल खरीद रहा था जिसकी 6 महीने की उधारी थी। अब उसको पेमेंट देना पड़ रहा है 1.5 महीने में, 45 दिन में। अब वो क्या करे? तो वहां पे आप सामने वाले पार्टी से, जो सेलर है, उससे जितना आपका इंटरेस्ट का फैक्टर है उतने रुपए की डिस्काउंट मांग सकते हैं कि भाई पहले मुझे आपको 6 महीने में पेमेंट करता था और 100 रुपए किलो चीज देते थे, अब क्योंकि 2 रुपए की मेरी कॉस्ट आ गई इंटरेस्ट की, तो आप प्लीज इसका रेट जो है 98 कर दीजिए। तो सोल्यूशन हुआ ना, सब लोग खुश हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्या है? व्हेन ए बायर एक्सेप्ट एन इनवॉइस ऑन ट्रेड्स द एमएसएमई गेट इमीडिएट फंड विद इन 24 आवर्स। प्रैक्टिकली तो 4 से 5 घंटे में पेमेंट मिल जाता है। एंड द बायर पेज इंटरेस्ट टू द फाइनेंसर thereby ensuring compliance with section 43BH timeliness and healthy MSME cash flow। अब इसका फायदा क्या होगा कि अब मेरे बायर की बुक्स के अंदर जो सेलर का नाम है वो नहीं होगा, बैंक का या एनबीएफसी का नाम होगा। अब उसका फायदा क्या होगा कि 45 दिन से ज्यादा भी अगर वो डिले हो गया तो वो डिसअलाउड नहीं होगा। प्लस जो मुझे वहां पे पहले इंटरेस्ट को 3 टाइम्स देना पड़ता था, अब यहाँ पे 3 टाइम इंटरेस्ट नहीं देना। पहले इंटरेस्ट मेरा मंथली कंपाउंडेड बेसिस पे था, अब मेरा मंथली कंपाउंडेड नहीं है। प्लस मेरे जो whatever interest I have paid to MSME on delayed payment, that was not a allowable expenditure under Income Tax Act, but this interest paid to trade platform is a allowable expenditure under Income Tax Act। तो विन विन सिचुएशन हो गई ना सभी के लिए। The interest for period of 15 to 45 days will be borne by the seller and the buyer will get a credit further 6 month credit from the trades platform। तो सर ये कितना बढ़िया सॉल्यूशन है हमारे बड़े बिजनेस हाउसेस के लिए, जो मेरे एमएसएमई को कहते थे कि भाई रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराओ अदरवाइज हम आपसे माल नहीं खरीदेंगे। उन्हें कहो जी आप ट्रेड पे रजिस्टर करा लीजिए अपने आप को। जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको दूसरा एग्जांपल बताता हूं कि हम लोग अगर फ्लैट लेने के लिए जाते हैं और अगर जो बिल्डर है वो बिल्डर रजिस्टर्ड है किसी पर्टिकुलर बैंक में, और आपने देखा होगा कि जो न्यूज़पेपर वगैरह में ऐड भी आते हैं तो नीचे लिखा होता है सपोर्टेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, सपोर्टेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। तो अगर मैं हाउसिंग लोन लेने जाता हूं उस पर्टिकुलर बैंक में, तो जो बैंकर है वो मेरे बिल्डर को तो वेरीफाई करेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। उसने तो सिर्फ मुझे वेरीफाई करना है, मुझे भी इसलिए वेरीफाई करना क्योंकि किस्तें मैंने देनी है। पर ट्रेड प्लेटफॉर्म पे तो वापसी जो है सेलर को करना ही नहीं है ना पैसा, तो ट्रेडर को तो उसको वेरीफाई करना ही नहीं है, सेलर को तो वेरीफाई करना ही नहीं है, और बायर ऑलरेडी वेरीफाइड है और बायर ने एक्सेप्टेंस दे दी कि हाँ जी मैंने इनसे माल खरीदा और इतने दिन की ये हमारी टर्म्स कंडीशन है। तो इसलिए 4 घंटे के अंदर क्रेडिट मिल जाता है और ऑनलाइन प्रोसेस है पूरा। चलिए मैं आगे आपको और बताता हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि ट्रेड्स कैसे काम करता है। इसमें 3 चीजें हैं, पहला स्टेप, फिर प्रोसेस, फिर कौन इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले इनवॉइस अपलोड। जैसे ही आपने माल बेचा और आपको मालूम है कि मेरा जो बायर है वो ट्रेड प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड है, तो जो एमएसएमई सेलर है वो अपलोड करेगा अपने इनवॉइस को अपने बायर के प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पे इन्वॉल्व कौन हुआ? सेलर। दूसरा बायर एक्सेप्टेंस, यहाँ पे बायर वेरीफाइज द एक्सेप्टेंस द इनवॉइस ऑन द ट्रेड पोर्टल। बायर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, हाँ जी मैंने इस कंपनी से इतने का माल खरीदा है और इतने दिन में मैंने इसका पेमेंट करना, तो यहाँ पे इन्वॉल्व हुई पार्टी। अब तीसरा है बिड बाय फाइनेंसिस, यहाँ पे फाइनेंशियल कंपनी जो वहां पे रजिस्टर्ड है वो आएंगी। मल्टीपल बैंक एंड एनबीएफसी प्लेस बिड्स टू डिस्काउंट द एक्सेप्टेड बिल इनवॉइस। क्योंकि वो इनवॉइस पोर्टल आ गया, अब जो बायर है वो जितना स्ट्रोंग होगा उतनी ही कम्पिटिटिव रेट पे उसको इंटरेस्ट पे पैसा मिल जाएगा, जितनी क्रेडिट वर्दीनेस उसकी ज्यादा अच्छी होगी। जैसे हम जानते हैं बड़े बड़े पीएसयूज हैं, बिग हाउसेज हैं, ठीक है जी, तो जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा कम्पिटिटिव मिलेगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्व हो गया। एमएसएमई गेट्स फंड
अब वो एमएसएमई कैसे, एमएसएमई रिसीव द डिस्काउंटेड अमाउंट इनवॉइस वैल्यू माइनस डिस्काउंट, जो भी उनका इंटरेस्ट लगा होगा उतने दिन का, हाथ के हाथ मिल जाएगा, क्योंकि बाद में वो ब्याज नहीं लेंगे, वो कट करके आपको दे देंगे। यहाँ पे एमएसएमई और फाइनेंसर दोनों इन्वॉल्व हो गए। अब बायर रीपेमेंट, ऑन द ड्यू डेट बायर पेज द फुल इनवॉइस अमाउंट टू द फाइनेंसर। यहाँ पे बायर और फाइनेंसर का इन्वॉल्वमेंट हो गया। और यहाँ पे आजकल एक और बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है बैंकों ने। अगर आप बैंक से लिमिट बनवाने जाते हैं तो बैंकर जो है आपको इस तरह की फैसिलिटी भी देता है, क्योंकि आप एक बार रजिस्टर्ड हो गए तो जो आपका सेलर है उसने पैसा तो लौटाना ही नहीं है, और बायर ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ जी मैंने इसके पैसे देने हैं, और आपकी वहां पे बैंक में लिमिट बनी हुई है, तो इमीडिएटली बैंकर जो है सामने वाले को 2-4 घंटे के अंदर ही पेमेंट रिलीज कर देगा। तो बहुत अच्छा एक सिस्टम है, इसके सबके लिए विन विन सिचुएशन है। मैं आपको वो भी डिटेल में बताऊंगा। अब मैं पहले आपको ये बताता हूं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं ट्रेड्स के ऊपर जो काम करते हैं। पहला प्लेटफॉर्म है इनवॉइस मार्ट। ये इनवॉइस मार्ट एक्सिस बैंक और एम जंक्शन ऑपरेट करता है। ऐसे ही एक सेकंड है RXIL, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सिडबी और एनएससी ऑपरेट करती है। एक तीसरा है M1 एक्सचेंज, ये माइंड सॉल्यूशन करता है। और चौथा है C2FO, ये C2FO टेक्नोलॉजीज करती है। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, जो आरबीआई का ऑपरेट अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट है 2007 का, उसके सिस्टम से ये काम करता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? सबसे पहले उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर एमएसएमई वेरिफिकेशन, फिर पैन, जीएसटी एंड बैंक डिटेल, बायर रजिस्ट्रेशन एंड ऑथराइजेशन, एग्रीमेंट बिटवीन बायर एंड सेलर, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं जी मुझे 45 दिन में पेमेंट देनी है तो उस केस में एग्रीमेंट की कॉपी लगानी होगी। अब है ये सबसे इंपॉर्टेंट जो हमें समझना है कि ये ट्रेड प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन कैसे है सेक्शन 43BH का। हमें सेक्शन 43BH तो पता है कि डिसअलाउंस है और इंटरेस्ट है, लेकिन सरकार ने एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसके बेनिफिट तीनों कैटेगरी में कैसे होते हैं। तो सबसे पहले एमएसएमई को क्या बेनिफिट है कि एमएसएमई को ये बेनिफिट है कि अगर मेरा बायर ट्रेड प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर्ड है तो मुझे इमीडिएट पेमेंट मिल जाती है, यानी कि मुझे लिक्विडिटी जो है उस इनवॉइस के अगेंस्ट में इमीडिएट मेरी लिक्विडिटी बन जाती है। नंबर 2, नो कोलेटरल सिक्योरिटी। मुझे क्यों सिक्योरिटी देनी है? मैंने तो माल बेचा है, मैंने माल बेचा तो मुझे पैसे दो, आप नहीं दे रहे तो अपने बैंक से दिलवाओ, तो यहाँ पे मुझे कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी। तो फाइनेंसिंग इज बेस्ड ऑन बायर्स क्रेडिट रेटिंग। थर्ड, लोअर फाइनेंसिंग कॉस्ट देन ट्रेडिशनल फैक्टरिंग और बैंक लोन। यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर मल्टीपल बैंक है, मल्टीपल एनबीएफसीज हैं, तो वहां पे बिडिंग होती है, कॉम्पिटिटिव रेट पे जो है इंटरेस्ट रेट पे आपको फाइनेंसिंग हो जाती है। एंड फोर्थ एंड लास्ट, इंप्रूव योर कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो ये बेनिफिट हमारी एमएसएमई को है इस ट्रेड प्लेटफॉर्म से। अब आते हैं कि मेरे बायर को क्या बेनिफिट है। ensures compliance with section 43BH, that is timely payment to MSME। मैंने आपको बताया कि अगर आपने वहां पे डिले कर दिया तो आपका जो खर्चा है, कोरेस्पोंडिंग एक्सपेंडिचर है, दैट विल बी डिसअलाउड। बट इफ यू आर रजिस्टर्ड ऑन ट्रेड प्लेटफॉर्म एंड योर सेलर इज गेटिंग द देयर बिल डिस्काउंटिंग एट दैट प्लेटफॉर्म, तो आपकी तो कंप्लाइंस हो गई। अब आपकी लाइबिलिटी उसके लिए कहाँ है जो आपका सेलर था, अब तो आपकी लाइबिलिटी बैंक के प्रति है और बैंक से कोई मतलब नहीं है सेक्शन 43BH का, तो ये आपकी कंप्लाइंस हो गई। सेकंड, सेव फ्रॉम डिसअलाउंस ऑफ पेमेंट अंडर सेक्शन 43BH बाय एंश्योरिंग टाइमली पेमेंट टू एमएसएमई, बिल्कुल है। सेव फ्रॉम 3 times इंटरेस्ट लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 16 ऑफ एमएसएमई एक्ट। वहां पे अगर मैं एमएसएमई की पेमेंट को डिले करता हूं तो मुझे 3 times इंटरेस्ट देना पड़ता है, यहाँ पे सिंगल टाइम इंटरेस्ट देना है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है। चौथा, मेरे लिए सेव फ्रॉम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, वहां पे मुझे मंथली कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगता है, चक्रवर्ती ब्याज लगता है, और यहाँ पे मेरे पे सिंपल ब्याज लगेगा बैंक से जैसा लगता है। टाइमली पेमेंट सेफगार्ड द असेसी फ्रॉम डिसअलाउंस ऑफ इंटरेस्ट। अगर मैं इंटरेस्ट डिलेड पेमेंट का एमएसएमई को देता हूं, दैट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट, बट if I am giving interest to banker or NBFC for this bill discounting at trade platform,
दिस इज ए 100% अलाउेबल एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो सोचिए सर कितने बेनिफिट हैं इसके। ठीक है सर, किसी की कोई क्वेरी है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। रिलेवेंस विद सेक्शन 43BH, इसका रिलेवेंस क्या है सर? आस्पेक्ट सेक्शन ट्रेड सपोर्ट, ऑब्जेक्टिव एनफोर्स टाइमली पेमेंट टू एमएसएमई, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेड्स प्लेटफॉर्म क्या करता है? अनेबल्स अर्ली पेमेंट थ्रू इनवॉइस डिस्काउंटिंग। यहाँ मेरी पार्टी को, जो मेरा सेलर है, उसको 45 डेज भी वेट करने की जरूरत नहीं। वेरी फर्स्ट डे ही कैन गेट हिज बिल डिस्काउंटिंग थ्रू दिस ट्रेड प्लेटफॉर्म। टाइम लिमिट 43BH में तो 15 to 45 डेज लगते हैं एज पर एमएसएमई एक्ट। और ट्रेड्स अलाउ इमीडिएट एमएसएमई फंडिंग इवन इफ बायर पेज लेटर। थर्ड, कंप्लाइंस बेनिफिट, अवॉइड डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस। 43BH में डिसअलाउंस हो जाता है और यहाँ पे पेमेंट थ्रू ट्रेड्स एंश्योर कंप्लाइंस। एंड लास्ट, रिकॉर्ड कीपिंग, रिक्वायर प्रूफ ऑफ पेमेंट। 43BH में आपको रखना पड़ता है, सर देखो मैंने टाइम से पेमेंट कर दी। और यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करना चाहता हूँ सर, पहले हम लोग क्या करते थे, 31 मार्च को कोई चीज आउटस्टैंडिंग आ रही है तो हम उसको चेक इशू करके उसका अकाउंट बैलेंस शीट से हटा देते थे। लेकिन सर ध्यान रखना, एमएसएमई एक्ट की सेक्शन 43BH में बैंक की स्टेटमेंट देखी जाएगी कि आपके 15 और 45 डेज के अंदर बैंक के अंदर आपका अकाउंट डेबिट हो जाना चाहिए। आप कहे सर चेक इशूड बट नोट प्रेजेंटेड, सामने वाले ने नहीं किया, मेरी क्या गलती है? नो, योर अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड विद इन द एग्रीड टाइम, अदरवाइज दिस विल बी ए डिसअलाउड। बहुत लोगों ने ऐसे सोचा हुआ है, बहुत लोगों ने रिजेक्शंस भी किए हुए हैं। लेकिन रिजेक्शन भी ध्यान से करना। आपने माल खरीद लिया और आपने सोचा कि मेरे को डिले करना तो मैं रिजेक्ट कर देता हूं, आपने तो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने उस माल को बेच दिया। आपके स्टॉक में तो माल है नहीं और आप कह रहे जी मैंने माल रिजेक्ट कर दिया। अगर गलती से भी वो चीज क्रॉस चेक हो गई तो पार्टी फंस जाएगी। तो प्लीज इंश्योर, ना तो आपको रिजेक्शन में गलत रिजेक्शन करवाना है पार्टी से। आपने कहना भाई साहब ध्यान रख लेना, अगर वो स्टॉक आपका आउट हो गया और एक तरफ आप कह रहे मैंने तो रिजेक्ट किया जी माल को, उसको डिले करने के लिए, दैट इज नॉट अलाउड। द सेम वे, अगर आप कह रहे हैं कि जी मेरे तो 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग ही नहीं बिकॉज आई हैव इशूड द चेक, बट दैट इशूड चेक मस्ट बी प्रेजेंटेड इन द बैंक विद इन द एग्रीड टाइम। वो आपके ऊपर नहीं छोड़ा जाएगा कि जी सामने वाले ने नहीं डाला, वो भूल गया था, ये वो, नथिंग डूइंग। योर अकाउंट मस्ट बी डेबिटेड with that amount, otherwise this will be a delayed payment। तो डिजिटली वेरीफाइड हो गया। So TRADS act as a compliance tool to meet the payment timeline under section 43BH while maintaining buyer liquidity। So dear friends, this is all about section 43BH and TRAD platform। Now we can take up the query one by one। सत्यम जी सर। कोई क्वेरीज हैं? जी सर, कोई चैट हाँ ठीक है। मैं कहाँ से लिखूं? वाईफाई से यहाँ है ना, तूने गड़बड़ की हुई। ये हमारे उज्जवल कुमार जी लिखते हैं, व्हाट इफ एमएसएमई डज नॉट डिमांड इंटरेस्ट, स्टिल वी नीड टू मेक द प्रोविजन और नॉट? यस उज्जवल जी, मैंने आपको बताया किसी भी कंडीशन में जो है, मैं इसकी स्टॉप शेयरिंग कर देता हूं, किसी भी कंडीशन में ना तो आप 45 डेज से ज्यादा का डिले कर सकते हैं कि जी हमारा एग्रीमेंट था, नथिंग डूइंग, और ना ही आप सामने वाले ने लिख के भी दे दिया, कहा कि जी मैं आपसे इंटरेस्ट नहीं चार्ज करना चाहता, तो भी सर आपको इंटरेस्ट का प्रोविजन करना ही पड़ेगा। और बीइंग ऑडिटर हमें डिलेड पेमेंट के साथ साथ इंटरेस्ट के प्रोविजन की भी मेंशनिंग करनी होती है। तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा सर, हमें इंटरेस्ट का प्रोविजन करना ही पड़ेगा। और एक चीज और आपको बताता हूँ बहुत अच्छी, ये जो एमएसएमई एक्ट है, ये एमएसएमई एक्ट इंडिया के जितने भी एक्ट हैं उन सारे एक्ट को सुपरसीड करता है। हम जानते हैं कि लिमिटेशन एक्ट होता है 3 इयर्स का,
कि अगर आपने किसी से कोई पैसा लेना है तो 3 साल के अंदर उसकी पेमेंट हो जानी चाहिए। लेकिन एमएसएमई एक्ट में 3 साल के बाद भी अगर आपका डिले हो गया तो भी सर आपको पेमेंट उसकी देनी ही पड़ेगी। एमएसएमई एक्ट सुपरसीड ऑल द एक्ट इन इंडिया। ठीक है उज्ज्वल जी? Thank you. हेलो राज बाबू, हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते। इतने माय कॉम्प्लीमेंट्स टू यू, वेरी नाइसली स्पोकन, थैंक यू वेरी सर, नाइस। थैंक यू दूसरा ट्रेड रजिस्ट्रेशन ਜਿਹੜੀ है, जी इज सर। इट बैंक वाले ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि नो दे हैव टू रजिस्टर? नहीं नहीं, इफ योर टर्नओवर इज मोर देन 250 crore हाँ then it is mandatory for every company to register their self under this TRED platform. But हाँ if your turnover is less than 250 crore, in that जी, case, voluntarily you can request your banker that I want this facility. अच्छा और बैंक वाले जी आजकल क्या कर रहे हैं सर, जब वो आपकी जी, लिमिट बनाते हैं तो उस लिमिट में ट्रेड को भी कवर कर लेते हैं। हाँ, इसका अच्छा फायदा क्या होगा कि आपका जो ये एमएसएमई का डिलेड पेमेंट का झंझट है, इंटरेस्ट का, डिसअलाउंस का, ये सारे झंझट ही खत्म हो गए। हाँ, वो अपनी पार्टी को पेमेंट। बेनिफिट इज ओके। यस सर। आई तो वाज ऑन रजिस्ट्रेशन पार्ट। तो सर आपकी टर्नओवर 10 करोड़ है तो भी आप बैंकर के पास जाओ। बैंकर को तो बिजनेस चाहिए, उसको तो अपनी आपकी क्रेडिबिलिटी चेक करनी है उसको, तो कल को भाई मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। यही बैंकर का रूल है ना। जैसे हम अपनी लिमिट बनवाते हैं तो वो लिमिट को ट्रेड प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं सर। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। ये हमारे नीरज गुप्ता जी की क्वेरी है, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी शुड बी एडवांस एडीवी और कोस्ट। सर जो आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है और टर्नओवर है, ये दोनों के दोनों जो क्राइटेरिया हैं, इन दोनों को देखा जाएगा और इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी को देखा जाएगा सर। ये एडवांस का मतलब एडवांस दे रखा है। चलिए सर शायद WDV कहना चाहते हो। अच्छा, नहीं इन्वेस्टमेंट की बात करता सर। ये यहाँ पे बात जो करते हैं वो इन्वेस्टमेंट की करते हैं कि आपका कितना पैसा लगा, ठीक है ना। तो जितनी हमारी इन्वेस्टमेंट हुई थी उसमें जो ग्रोस अमाउंट है वो देखी जाएगी सर यहाँ पे। ठीक है। अब इसके बाद नितिन खन्ना जी की क्वेरी है, सर इंटरेस्ट किसको मिलेगा, वेंडर को या गवर्नमेंट? सर जिसने माल सप्लाई किया इंटरेस्ट तो उसको मिलेगा ना। डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट हमारे सेलर को मिलेगा जो एमएसएमई है। और एमएसएमई में इंटरेस्ट में मैंने जैसा बताया कि डिसअलाउंस तो सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल का होगा, लेकिन इंटरेस्ट के लिए माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम तीनों एलिजिबल हैं, तीनों को मिलेगा, गवर्नमेंट को नहीं मिलेगा। हमारे नरेंद्र कुमार जी की क्वेरी है, सर इज दिस ए बेटर प्रैक्टिस टू पे वेंडर इन ए वीक टाइम एंड कलेक्ट 2% CD फॉर अर्ली पेमेंट और टेक क्रेडिट नोट ऑफ डिस्काउंट आफ्टर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नरेंद्र जी। और मैंने तो सर एक सॉल्यूशन और बताया है। कई लोगों को, मेरे भी कई क्लाइंट थे, उनको आदत पड़ी हुई थी कि भाई मेरे को तो 6 महीने की उधारी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि भाई कोई बात नहीं, आपका सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं। 6 महीने की उधारी चाहिए, मैं 100 रुपए किलो कोई माल लेता था और 6 महीने के लिए उधारी मिलती थी। अब मुझे 45 डेज की उधारी मिल रही है और 4.5 महीने का ब्याज मुझे देना पड़ेगा ट्रेड प्लेटफॉर्म पे। तो जो मेरी 4.5 महीने की कॉस्ट है, इंटरेस्ट जो मुझे देना है, मैं अपने वेंडर को कहूंगा कि भैया वो इंटरेस्ट के अमाउंट जो है आप प्लीज कम कर लीजिए 100 रुपए में। वो खुशी खुशी करेगा, उसका भी तो बेनिफिट हो रहा है। ये तो कम्पिटिटिव रेट पे इंटरेस्ट है, कोई हैवी इंटरेस्ट तो है नहीं। ठीक है ना सर। तो ये है सर। चलिए अब हमारे अकाउंट्स टीसीजी कहते हैं व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिलेड पेमेंट? यस सर। सर ये बैंक का जो रीपो रेट होता है उसको देखा जाता है। आज की डेट में जो आरबीआई का रीपो रेट है वो 5.5% है और इसमें हम बात करते हैं 3 times द बैंक रीपो रेट, यानी कि 5.5% का 3 गुना, ये हो गया 16.5%। अब 16.5% को मंथली कंपाउंडेड देखा जाएगा। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखने वाली है सर कि जो ये डिलेड पेमेंट का इंटरेस्ट है, जिस डेट को डिले हुई है उस डेट का देखना है। पहले ये 7% भी था, फिर 6.25 था, 6.5, 6, अब 5.5 है। आज की डेट का रेट नहीं लेना आपने, जिस डेट को डिले हो गई,
जिस डेट को आपके 15/45 डेज पूरे हो गए उस दिन क्या रिपो रेट था वो आपको वेबसाइट पे, गूगल पे, सब जगह मिल जाएगा, तो वहां से आप ले सकते हैं सर। इसके बाद है सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 3 टाइम्स कंपाउंडिंग इंटरेस्ट, बट व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इंटरेस्ट रेट मैंने सर आपको बता दिया, एज ऑन टुडे इट इज 5.5% एज आरबीआई रिपो रेट। ये क्रेसेंट फाइनेंस लिखते हैं, प्लीज शेयर रिकॉर्डिंग ऑफ Hello. सेमिनार। श्योर सर, हम हेलो सर, एक आपको, क्वेरी है हाँ जी प्लीज। सर। जैसे अगर अलग अलग वेंडर है, वो अलग अलग वेंडर की अलग अलग डिले हुई है डेट, तो हाँ जी, हर वेंडर के लिए अलग अलग रेपो रेट लेंगे। नेचुरली सर, सबका अलग अलग ही कैलकुलेट करोगे। जैसे हम टीडीएस सबसे अलग अलग काटते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे हर वेंडर का कैलकुलेट उसी हिसाब से किया जाएगा। अच्छा, बट कंपनी तो सर अभी वही कर रही है कि एक ही रेपो रेट से मल्टीप्लाई कर रही है। अब करता रहे कोई, मैं तो आपको सिस्टम बता रहा हूँ कि जो एक्ट में लिखा हुआ है वो आप भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, भाई जिस ठीक है। दिन आपकी हाँ। डिले हुई पेमेंट, ब्याज हाँ। तो आपको उस रेट का मिलेगा ना। अब बैंक, आपको मालूम है जब भी बैंक की पॉलिसी आती है इनका रिपो रेट चेंज होता रहता है। अभी काफी दिनों से, पिछले 3 4 6 महीने से वो 5.5% है। पहले 7% भी था, 6.25 भी था, 6.5 भी था। आपका डिले मान लो 1 साल पुराना है तो आपको उस दिन का रेट मिलेगा। ठीक है ओके, सर? वेंडर स्पेसिफिक है। यस सर। अब इन्होंने एक कहा है सर रिकॉर्डिंग के लिए, सर हम आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, और जो है आपको जो हमारे पीपीटी यूज की है, जो मैंने खुद बनाई हुई है, हो सकता है इसमें कोई छोटी गलती हो तो मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, तो आपको पीपीटी और रिकॉर्डिंग दोनों मिल जाएंगी। अब हमारे जसवीर वालिया जी कहते हैं, अंडर विच क्लोज इन टार अमाउंट पेड इन नेक्स्ट ईयर फॉर एमएसएमई डिसअलाउंस इन प्रीवियस ईयर इज टू बी मेड। सर ये क्लोज 22 दिया हुआ है, 22 के अंदर सर ये पूरा का पूरा डिटेल जाएगी आपकी कि एमएसएमई से कितना माल खरीदा, कितना उन्होंने टाइम से पेमेंट किया, कितना डिले है, कितना डिसअलाउंस है। ये पूरा आप सर क्लोज 22 को पढ़ेंगे आराम से, उससे यू कैन रिप्लाई दोस क्लोजेस एज पर देयर। और किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं सर, अदरवाइज इट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। एनीवन? सर एक बताए, ये जी जो सर। हमारे क्लाइंट है उनके केस में बताए इंटरेस्ट बनता है, वो कहते हैं मैं इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट का प्रोविजन नहीं डालना चाहते अपनी बैलेंस शीट में, तो अब क्या करें सर, हम कैसे अपने को सेव करें? तो आप ऑडिटर होने के नाते आप मेंशन कर दीजिए रिपोर्ट में कि अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एमएसएमई एक्ट इंटरेस्ट शुड बी देयर बट दे हैव नॉट प्रोवाइडेड। हम ऑडिटर क्या कर सकते हैं? और एक चीज मैं सर आप सभी को बहुत अच्छी बात और बताना चाहता हूं। अब चूंकि बात हुई कि प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट है, अब प्रोविजन हाँ। फॉर इंटरेस्ट है तो फिर टीडीएस भी कटना चाहिए। हाँ। अब टीडीएस कटेगा कि नहीं कटेगा? तो यहाँ पे जो मेरा अपना मत है, जो मुझे एक्सपीरियंस है या मुझे नॉलेज मिली है, मेरे हिसाब से हमें टीडीएस के चक्कर में नहीं पड़ना। उसके 2 कारण हैं टेक्निकल। पहला कारण है कि चूंकि मैंने कोई उनसे पैसा तो उधार लिया नहीं। टीडीएस ऑन इंटरेस्ट कब होगा? कि जब मैंने किसी से कोई लोन लिया हुआ हो, तो यहाँ पे तो डिले ऑफ पेमेंट है, तो इसलिए नहीं होगा। नंबर 2, जब मैं किसी खर्चे का टीडीएस नहीं काटता तो क्या होता है, वो पी एंड एल में डिसअलाउ हो जाता है जब हम कंप्यूटेशन बनाते हैं। ये तो पहले से ही डिसअलाउड है। इंटरेस्ट पेड टू एमएसएमई ऑन डिलेड पेमेंट इज नॉट अलाउएबल एक्सपेंडिचर, और टीडीएस नहीं काट के तो डिसअलाउड तो पहले ही है। तो इसलिए मुझे टीडीएस के झंझट में पड़ने की जरूरत तो नहीं है सर। सर मुझे एक बात और बताइए कि बात जैसे है। पूरे साल के अंदर जैसे कई बार डिले होती है पेमेंट के अंदर, लेकिन पेमेंट हो गई है और क्लोजिंग तक जाते जाते कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जिसमें 45 दिन मतलब से ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं है 31 मार्च को। है, तो उस टाइम में उस पोजीशन में भी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना सर पड़ेगा? देखो, बीइंग ऑडिटर, सैंपल बेसिस पे, रैंडम बेसिस पे तो हमें चेक करना चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि कौन कौन सी डिले है पेमेंट। ठीक है ना जी? क्योंकि इंटरेस्ट का प्रोविजन तो होना चाहिए सर। कितना भी सेलर लिख के दे दे आपको कि आई विल नॉट चार्ज इंटरेस्ट, बट प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इज देयर। और एक चीज और आपको बताऊं सर, मैं मान लीजिए आज की डेट में तो सेलर ने कोई ऑब्जेक्शन किया नहीं, 2 4 साल बाद मान लो उसका कोई बायर से कोई डिस्प्यूट हो गया,
तो 4 साल बाद भी क्लेम कर सकता है अपने इंटरेस्ट को सर, डिलेड पेमेंट के। हाँ, वो तो आपने सर एक बार सेल्टेस बार में ही बताया था। जी सर, तो वो हाँ। कभी भी उसको क्लेम कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, एमएसएमई एक्ट के अंदर जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता, और इसके अंदर उसको कहीं कोर्ट कचहरी भी नहीं जाना पड़ेगा सर। एमएसएमई वालों के लिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसका नाम है एमएसएमई समाधान। ये भी हम प्रोफेशनल के लिए बहुत बड़ी एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी है। हाँ। एमएसएमई समाधान पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है सर। और अब तो गवर्नमेंट जो है एक नया दूसरी स्कीम लेके आ रही है, उस पर भी मैं बहुत जल्द प्रोग्राम करूंगा। कि अभी तक तो ये स्टेट वाइज है एमएसएमई समाधान जो रिकवरी सिस्टम है, अब ये सेंट्रल बेसिस पे लाने जा रहे हैं। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपकी 20 लाख तक की रिकवरी है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काउंसिल बनी हुई है, 20 लाख रुपए से ज्यादा है तो स्टेट लेवल पे बनी हुई है, सेंट्रल लेवल पे भी कोई सिस्टम नहीं है। अब गवर्नमेंट जो, क्योंकि एमएसएमई एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्ट है, तो सरकार वो नई स्कीम लेके आ रही है, सेंट्रलाइज स्कीम लेके आ रही है। ठीक सर है। कुछ ऐसा कुछ बता दिए हैं जो हम अपनी रिपोर्टों में अपने को सेव कर सकें। नहीं तो आप लिख दीजिए सिंपल कि भाई इन 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 आवर ओपिनियन इंटरेस्ट शुड बी देयर ऑन द डिलेड पेमेंट टू एमएसएमई, बट द एसएससी हैज नॉट प्रोवाइडेड। खत्म। हम अपने ऊपर क्यों ले बात को सर। आप भी हाँ। समझते हैं आज की डेट में कितनी समस्याएं हैं प्रोफेशनल के लिए, तो व्हाई शुड आई टेक द रिस्क। क्लाइंट एकदम भागने को तैयार रहता है कि कब तक आदमी। भागे जी सर, हमने थोड़ी ना अपनी जिम्मेदारी लेनी है, भागता हो भाग जाए, हाँ लेकिन हम हाँ, देख के तो मक्खी को नहीं खा सकते ना सर। वो तो सही बात है। अब मुझे नहीं पता लगा क्योंकि रैंडम बेसिस पे है, तब तो ठीक है, तब तो मेरा फॉल्ट नहीं है, क्योंकि मैं 100% फोरेंसिक ऑडिट थोड़ी ना कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी नॉलेज में आया ये ज्यादातर पेमेंट डिले है, तो सर फिर तो वो इंटरेस्ट का प्रोविजन होना चाहिए ना। आप गोलमोल सा करके लिख दो अपना जो है। हाँ, अगर अगर जैसे हमने जो टेस्ट चेक बेस करी है वो बिल्कुल टाइमली पेमेंट है, तो वो हमारे को सेव नहीं कर लेगा कि हम कह देंगे ठीक है बाकी पेमेंट सही है, हाँ कह तो सकते हैं। हाँ तो भाई ऑडिटर तो टेस्ट बेसिस पे ही ऑडिट करता है ना जी, 100% तो हमारी कोई वो भी नहीं होती ना। हाँ, जी सर उनमें मान लीजिए हमारी जो टेस्ट बेसिस है और उनमें कोई डिले नहीं है, तो जी फिर हमें इंटरेस्ट का प्रोविजन डालना चाहिए या उसका मैसेज करना चाहिए, मेंटेन मेंशन करना चाहिए कि इंटरेस्ट का। हाँ, मेंशन तो करना चाहिए सर। अच्छा, वो जी, उसमें क्या 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 वर्डिंग्स होने चाहिए सर? वो आप मेरे को पर्सनल फोन कर लेना, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, ठीक है ठीक है, ठीक तो है, ये थैंक यू सब सर। आपसदारी की बातें हैं। एक ये हमारे कुमार अभिषेक जी की क्वेरी है, वेदर अंडर सेक्शन 43 BH डिसअलाउंस एप्लीकेबल इज विद जीएसटी और विद। सर विद जीएसटी होगा, क्योंकि जीएसटी भी तो उसके ऊपर लाइबिलिटी होगी, उसने बिल रेज कर दिया आपको, उसको तो बेचारे गरीब को अपने पास से पे करना पड़ेगा ना जीएसटी भी। तो आप तो पूरा का पूरा डिसअलाउंस कराइए सर इसका। वेदर अंडर सेक्शन 43 BH डिसअलाउंस एप्लीकेबल इज जीएसटी और विदाउट जीएसटी। ठीक है सर, हाँ सेम चीज है। तो सर विद वैसे तो जीएसटी एक्ट में भी वो डिसअलाउड हो जाता है अगर वो नहीं पे करता, लेकिन हम ऑडिटर लोग भी तो क्या करते हैं कि बिल रेज कर देते हैं, कई बार पेमेंट नहीं आई, तब हम क्या करते हैं अपने पास से पे कर देते हैं। ठीक है ना जी, तो इस तरह से है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एमएसएमई। और मैं अभी बस आधे घंटे में जैसे ये रिकॉर्डिंग तैयार होती है, रिकॉर्डिंग और पीपीटी आप लोगों को शेयर करता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। सत्यम बंद कर।